Good morning. Have a great day to all. Hi students, how are you? Students, in this video, I will explain our chapter number 22. The title of this chapter is Comparison of Adverbs. This is the title of chapter number 22. It's a very important chapter, so students, all of you give proper concentration. Now, first of all, read these sentences given in your textbook. First sentence, Mahira works hard. Second, Mubina works harder than Mahira. And third, Moina works the hardest of them all. Now students, you can see here three highlighted word, hard, harder and hardest. Okay, now so you all of you understood that here the comparison is given. In first sentence hard is written, in second harder is written, and in third hardest is written. Now let us see in detail what we have to learn in this chapter. Now we know that we can use adverbs to make comparisons. Adverbs, students, the previous chapter, in that we learn what is adverb, which are the different kinds of adverb, which are the different positions of the kinds of the adverbs, that we have learned already. In this chapters we have to learn about a comparison of adverbs. Adverbs also have degree of comparison like adjectives. Students, हमें पता है जैसे कि adjectives में comparison होता है, same way adverb में भी degrees of comparison होता है. We use adverbs in the positive, comparative and superlative degrees. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को तो पता है कि there are the three types of degree, which are that positive, comparative and superlative degrees. Now here one important table given in your textbook on page number 103. It's a very important table, so all of you give here proper concentration. This table shows us how to change adverbs in the positive form to the comparative and superlative forms. ओके तो जब स्टूडेंट्स पॉजिटिव डिग्री दिया होता है उसमें से कंपैरेटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं और सुपरलेटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से एग्जाम्पल के साथ टेबल में समझाया है. तो सभी स्टूडेंट्स ये टेबल बहुत ही ध्यान से पढ़ना. नाउ लुक एट हियर, पॉजिटिव डिग्री, वन सिलेबल एडवर्ब. फॉर एग्जाम्पल, सून इज गिवन. If we want to change this word into comparative degree, what we have to add? ER. You can see here in the table, soon is a positive degree, but what is comparative degree? Sooner. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि जो soon का स्पेलिंग दिया है SOON, उसके पीछे क्या ऐड किया है? ER किया है. तो ये जो पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है वो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाता है. सेम वे in superlative degree we have to add est at the end of the word. so यहाँ पे comparative degree sooner है तो उसका जो superlative degree में कैसे change होता है, तो we have to add est at the end of the word. तो यहाँ पे soonest हो जाता है. so what is positive? Soon. what is comparative? Sooner. and what is superlative? Soonest. Same way, second example, second word is here given fast. Then in comparative we have to add er, so it change into comparative degree. So fast का comparative degree क्या होता है? Faster. And what is the superlative degree? We have to add est at the end of the word, that is fastest. So fast, faster, fastest. You have to also speak with me so that you can easily remember all these words properly. Now most adverbs, here another example is given, quietly. okay तो ऐसा वर्ड्स दिया है तो स्टूडेंट्स इसमें हमें कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए ER ऐड नहीं करना है, बट हमें क्या ऐड करना है? जैसे कि क्वाइटली वर्ड्स दिया है तो उसके आगे हमें ऐड करना पड़ेगा मोर, देन इट विल चेंज इनटू कंपैरेटिव फॉर्म. सो क्वाइटली इज अ पॉजिटिव डिग्री, and what is comparative? More quietly. And in superlative degree we have to add most before quietly. So what is superlative form? Most quietly.
Quietly is a positive degree, more quietly is a comparative degree, and most quietly is a superlative degree. Now सेकेंड एग्जाम्पल स्वीटली, सेम वे जैसे कि हमने पहला वर्ड क्वाइटली जैसा किया है उसी तरह से इसमें भी हमें कंपेरेटिव डिग्री में हमें आगे क्या ऐड करना पड़ेगा, मोर स्वीटली, एंड इन सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट स्वीटली. Okay, now there are some exception words. Okay, so what we have to do, for example here early is given, तो यहाँ पे हम more early year या ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, बट हमें डायरेक्टली क्या ऐड करना पड़ेगा, er ऐड करना पड़ेगा. और in superlative degree we have to add est. So what is positive, early, what is comparative, earlier, and what is superlative, earliest. Okay, now we are going further. Some irregular adverbs are also there. Here some of the example given, you can read it properly. For example, well. So what is comparative here degree? Well का क्या होता है, better. And what is superlative, best. Second word, badly. Here positive adverb badly is given. What is comparative adverb, worse. And what is superlative adverb, worst. So remember all these words properly. These are called irregular adverbs. Then another word, much. What is comparative, more. And what is superlative, most. Next word, little is a positive adverb. Then comparative is less, and what is superlative, least. Next word, far is a positive adverb. What is comparative, farther or further. You can write out of two any one. And what is superlative, farthest or furthest. Out of two you can write any one. So these are students irregular adverbs, and you have to remember all the positive adverbs, comparative adverbs, and superlative adverbs properly by heart. Okay, so this table is a very important table. You have to learn by heart. Now look at here. We use than with the adverb in the comparative form when we mention the second person or thing. तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है जैसे कि कंपैरेटिव एडवर्ब्स का कोई भी मेंशन होता है सेंटेंस में, तो वहाँ पे धैन लगाया हुआ होता है. कोई भी थिंग्स या कोई भी पर्सन के बारे में कंपैरिजन होता है तब. तो कंपैरेटिव डिग्री में धैन वर्ड्स का मेंशन होता है. तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है. ठीक है. नाउ लुक एट हियर. सुधा रन्स फास्टर देन रवि. तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि यहाँ दो पर्सन का कंपेयर किया है. ठीक है. सुधा रन्स फास्टर देन रवि. तो कौन ज़्यादा फास्ट रन करता है, सुधा. फास्टर देन रवि, रवि से ज़्यादा वो फास्ट रन कर सकती है. तो यहाँ पे दो पर्सन के बीच में कंपैरेटिव दिखाया है, कंपैरेटिव डिग्री. बट यहाँ पे मेंशन आप देख रहे हो सेंटेंस में धैन का यूज़ कर रहा है, किया हुआ है. तो मोस्टली इन कंपैरेटिव फॉर्म धैन वर्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड सेंटेंस, टीना वर्क्स मोर क्विकली देन राजीव. यहाँ पे भी दो पर्सन का कंपैरिजन किया है. व्हाट इज दैट, टीना वर्क्स मोर क्विकली. सबसे ज़्यादा वर्क फास्ट कौन करता है, टीना. देन राजीव, राजीव से ज़्यादा वो फास्ट वर्क करती है. तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो सेंटेंस में देन का यूज़ किया है. सी दैट नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, वी डू नॉट यूज़ मोर और मोस्ट विद द ER और EST एंडिंग. ठीक है. तो यहाँ पे आप दो एग्जाम्पल देखो. द पार्सल वॉज डिलीवर्ड मोर सूनर देन एक्सपेक्टेड. तो यहाँ पे क्या दिया है ये डिटेल में कि यहाँ पे हम मोर और ER दोनों का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग रहेगा. आइदर वी हैव टू ऐड मोर और वी हैव टू ऐड ER इन द कंपैरेटिव फॉर्म. तो व्हाट इज करेक्ट सेंटेंस, द पार्सल वॉज डिलीवर्ड सूनर देन एक्सपेक्टेड. ठीक है. तो यहाँ पे सिर्फ हमें ER का यूज़ प्रॉपर है, तो फिर आगे हमें मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो दिस सेंटेंस इज़ अ करेक्ट सेंटेंस. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस
chapter. Exercise number A. Complete this table with the correct forms of the adverbs. तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज में आप लोगों को सिर्फ टेबल ही कंप्लीट करना है और यहाँ पे कई कई वर्ड्स दिए हैं. सम ऑफ द वर्ड्स गिवन इन पॉजिटिव डिग्री, सम ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कंपैरेटिव डिग्री एंड सम ऑफ द वर्ड्स गिवन इन सुपरलेटिव डिग्री. सो वॉट एवर द मिसिंग space there we have to fill up with the correct answer. Now first, in positive degree late is given, so we have to write in comparative form later and in superlative form we have to write latest. Okay, now in second, superlative degree is given, so we have to write positive degree as well as comparative degree. Here the word is given most angrily. Okay, is it superlative degree? So first we have to write positive degree angrily. And what is comparative of angrily? More angrily. So what is answer? Angrily, more angrily and most angrily. Number 3. In that comparative degree is given more calmly. So we have to write positive degree as well as superlative degree. So what is positive degree? Calmly. CALMLY. What is superlative degree? Most calmly. Okay. So what is answer? Calmly, more calmly, most calmly. Now in fourth, positive degree is given freely. We have to write comparative degree as well as superlative degree. So what is the comparative degree of freely? More freely. And what is superlative? Most freely. So what is answer? Freely, more freely, most freely. Students, you have to also recite this table with me so that you can easily remember this table properly. Now number 5. In that comparative degree is given, less given. So we have to write positive degree and superlative degree. So what is positive degree of a less? Little. And what is superlative? Least. LEAST. So what is answer? Little, less, least. Number 6. Here superlative degree is given. Most quickly is written. So we have to write positive and comparative degree. So what is positive degree? Quickly. And what is comparative degree? More quickly. So what is answer? Quickly, more quickly and most quickly. Now in number 7, positive degree is written early. So we have to write comparative and superlative. So what is here comparative degree? Here early is given. So we have to cut it Y and there we have to add IER. Okay. So earlier and in the superlative we have to add IEST. So earliest. Early, earlier, earliest. Now in 8 also positive degree written bad. So what is comparative degree of bad? Worse. WORSE. And what is superlative? Worst. WORST. So bad, worse, worst. Okay. So this is exercise number A. This way we have to complete the table, students. This table you have to learn by heart. Read 2 times properly and recite 2-3 times if you don't remember it properly. But this table is a very important. You have to learn by heart. Okay. Now we are going towards exercise number B. Now it is also very important exercise, students. First of all, we will read the instruction what is given. Complete the sentences with the correct comparative or superlative forms of the adverbs in the box. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हेल्प बॉक्स दिया है, ठीक है. बट यहाँ पे जो हेल्प बॉक्स दिया है वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट हमें आंसर में नहीं लिख देना है, ठीक है. उसका या तो हमें कंपैरेटिव में चेंज करना पड़ेगा या तो हमें सुपरलेटिव में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, या तो पॉजिटिव फॉर्म में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी फर्स्ट सेंटेंस, जलसा डांसेस ब्लैंक धन आरती. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि सेंटेंस में धन का यूज़ हुआ है, 2% का कंपैरिजन दिखाया है, ठीक है. तो यहाँ पे जलसा है वो डांसेस मोर ग्रेसफुली धन आरती, ठीक है. तो यहाँ पे हेल्प बॉक्स में ग्रेसफुली तो दिया है बट यहाँ धेन दिया है, इसलिए हमें उसको कंपैरेटिव में चेंज करना पड़ेगा.
तो यहाँ पे जो हेल्प बॉक्स में दिया है वो ग्रेसफुली है, वो पॉजिटिव एडवर्ब है, तो उसको हमें कंपैरेटिव में पहले चेंज करना पड़ेगा। तो उसका कंपैरेटिव क्या होता है? मोर, हमें ऐड करना पड़ेगा, मोर ग्रेसफुली। दैट्स वाई हियर रिटन मोर ग्रेसफुली। ओके, नाउ सी सेकेंड, यू नीड टू पुश द डोर ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हेल्प बॉक्स में हार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हार्ड का क्या करना पड़ेगा? हार्डर। ओके, कंपैरेटिव में चेंज करना पड़ेगा। यू नीड टू पुश द डोर हार्डर, HARDER। ओके, नाउ नंबर 3, लुक एट हियर स्टूडेंट्स, भावेश स्पीक्स द ब्लैंक इंग्लिश इन द क्लास। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया है वर्ड वेल। इन हेल्प बॉक्स you can see well is given, but this sentence how we can know that we have to write here superlative form, because you can see before the blank which word is given? The. And remember students, in superlative form it is very important to use first the. So here the sign is given, before the blank the is given, that's why here हमें well का क्या करना पड़ेगा? सुपरलेटिव फॉर्म। तो वेल का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है? बेस्ट। दैट्स व्हाई हियर रिटन भावेश स्पीक्स द बेस्ट इंग्लिश इन द क्लास। नंबर 4, द पर्सन हु रन्स द ब्लैंक विल विन द रेस। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि फिलअप्स के आगे ध लिखा है, तो ये भी साइन है कि जहाँ पे फिलअप्स के आगे ध लिखा है वहाँ पे हमें सुपरलेटिव फॉर्म ही डालना पड़ता है। तो यहाँ हेल्प बॉक्स में फास्ट लिखा है, तो what is superlative form of fast? Fastest. That's why here written the person who runs the fastest will win the race. Number 5, Pranav is very generous, but at times he spends his money blank than he should. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें हेल्प बॉक्स में केयरलेसली लिखा है, बट यहाँ पे आप सेंटेंस में देख रहे हो कि धैन का यूज़ किया है, तो यहाँ पे कंपेयर किया है। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म हमें डालना पड़ेगा। तो केयरलेसली का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है? मोर केयरलेसली। दैट्स वाई हियर वी हैव टू राइट मोर केयरलेसली। नंबर 6, जुबैर डज हिज वर्क ब्लैंक दैन रूही। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि कंपैरिजन है, यहाँ पे भी फिलअप्स के पीछे ध्यान लगाया है, मीन्स यहाँ 2 पर्सन का कंपैरिजन दिखाया है। तो यहाँ हेल्प बॉक्स में वर्ड लिया है सीरियसली, तो हमें कंपैरेटिव करना पड़ेगा। सीरियसली का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है? मोर सीरियसली। दैट्स वाई हियर रिटन जुबैर डज हिज वर्क मोर सीरियसली दैन रूही। ठीक है, नंबर 7, Paresh made the vase the blank of all the potters. ओके, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आप फिलअप्स के आगे कौन सा वर्ड दिया है? द इज अ साइन बिफोर द ब्लैंक्स इफ इट इज गिवन, इट इज वेरी कंपल्सरी दैट वी हैव टू राइट ओनली सुपरलेटिव फॉर्म। सो यहाँ पे हेल्प बॉक्स में स्टूडेंट्स आप देख रहे हो स्किलफुली लास्ट वर्ड लिखा है, बट हमें उसको सुपरलेटिव में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हमें आगे क्या ऐड करना पड़ेगा? मोस्ट। सो व्हाट इज आंसर? परेश मेड द वेल्स द मोस्ट स्किलफुली ऑफ ऑल द पॉटर्स। ठीक है, नाउ नंबर 8, वी वॉकड ब्लैंक देन द रेस्ट ऑफ द ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि वर्ड कौन सा दिया है हेल्प बॉक्स में? फर्स्ट वर्ड स्लो। ठीक है, बट यहाँ फिलअप्स के बाद कौन सा वर्ड लिखा है? धैन। तो आपको अब तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे हमें कंपैरेटिव फॉर्म डालना है कि सुपरलेटिव। कौन सा फॉर्म डालना है? कंपैरेटिव। तो स्लो का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है? स्लोअर। सो व्हाट इज आंसर? वी वॉकड स्लोअर देन द रेस्ट ऑफ द ग्रुप. So this way we have to complete all these blanks students. I hope whatever I have discussed in this exercise number 2, all of you understood it properly. Okay, now we are moving for the exercise number C. Now look at here students, what is instruction given? Complete these sentences with the correct comparative or superlative adverb
फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट सेम उसी तरह की ही फिलअप्स है जैसा अभी हमने किया। यहाँ पे ब्रैकेट में वर्ड्स दे दिया है, तो यहाँ पे हमें कंपैरेटिव फॉर्म में लिखना है कि सुपरलेटिव फॉर्म में लिखना है, वो तय करना पड़ेगा। बाद में ही हमें उसका कंपैरेटिव या पॉजिटिव या सुपरलेटिव फॉर्म में डालना पड़ेगा। नाउ सी द फर्स्ट सेंटेंस, दिव्या स्पीक्स इंग्लिश ब्लैंक इनटू ब्रैकेट कॉन्फिडेंट नाउ देन सी डिड लास्ट ईयर। यहाँ पे भी दो सिचुएशन की कंपैरिजन हुई है और सेंटेंस में धैन का मेंशन किया है, इसलिए यहाँ पे कॉन्फिडेंट का हमें कंपैरेटिव फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंट का कंपैरेटिव क्या होता है? मोर कॉन्फिडेंटली। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये भी ध्यान में रखना है कि कॉन्फिडेंट वर्ड दिया है उसका हमें एडवर्ब भी करना पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंट का एडवर्ब क्या होता है? कॉन्फिडेंटली। ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस, सुषमा ग्रीटेड मी द ब्लैंक इनटू ब्रैकेट पोलाइट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले पोलाइट का हमें एडवर्ब बनाना पड़ेगा। तो पोलाइट का एडवर्ब क्या होता है? पोलाइटली। ठीक है, ly ऐड करना पड़ेगा हमें। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो फिलअप्स के आगे द लिखा है, ऑफ ऑल। ठीक है, तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री दिखाया है, इसलिए हमें उसको सुपरलेटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो सुपरलेटिव क्या होता है? मोस्ट पोलाइटली। दैट्स वाई हियर रिटन मोस्ट पोलाइटली। सुषमा ग्रीटेड मी द मोस्ट पोलाइटली ऑफ ऑल। नंबर 3, she smiled into bracket happy on her birthday. Okay, now here इधर हमें स्टूडेंट्स हैप्पी मीन्स यहाँ पॉजिटिव ही करना है, पॉजिटिव एडवर्ब लगाना है, बट हैप्पी इज नॉट एडवर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज इट। सो व्हाट इज द एडवर्ब ऑफ हैप्पी? हैप्पीली। Here we have to write positive form. That's why only happily we have to write HAPPI। Y का I हो जाता है और LY ऐड करना पड़ता है, ILY। So what is answer? She smiled happily on her birthday. Number 4, could you write blank into bracket clear? ठीक है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव फॉर्म है बट यहाँ क्लियर दिया है, तो क्लियर इज नॉट एडवर्ब। So first we have to change this word into adverb. So what is adverb of clear? Clearly. ठीक है। तो जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए स्टूडेंट्स वो सभी एडजेक्टिव्स है, तो पहले एडजेक्टिव्स में से हमें उसको एडवर्ब में चेंज करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हमने क्लियरली लिखा है। ठीक है, तो क्लियर का क्या हो जाएगा? क्लियरली, CLEAR, और उसके बाद हमें ऐड करना पड़ेगा LY, क्लियरली। सो व्हाट इज आंसर? Could you write clearly? Number 5, aeroplanes fly blank into bracket high than birds. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे हो सेंटेंस में फिलअप्स के बाद than लगाया है, यानी कंपेयर किया है एरोप्लेन का और बर्ड्स का। तो इधर हाई है तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा? कंपैरेटिव फॉर्म हायर। दैट्स आई हियर रिटन हायर, HIGHER। Aeroplanes fly higher than birds. Okay. Now next, 6. The new mechanic checked the car blank into through than the old mechanic. Okay, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे भी सेंटेंस में ध्यान दिया है, तो यहाँ पे भी कंपैरिजन है। ठीक है, मीन्स कंपैरेटिव फॉर्म। तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? मोर थ्रोंगली। ओके, द न्यू मैकेनिक चेक द कार मोर थ्रोंगली देन द ओल्ड मैकेनिक। नंबर 7, अवर टीम प्लेड द ब्लैंक इनटू ब्रैकेट बैड ऑफ ऑल द टीम्स। यहाँ पे आप देख रहे हो स्टूडेंट्स ब्लैंक्स के आगे ध लिखा है, इसलिए हमें कौन सा फॉर्म डालना पड़ेगा? सुपरलेटिव फॉर्म। तो बैड का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है? वर्स्ट, WORST। सो व्हाट इज आंसर? अवर टीम प्लेड द वर्स्ट ऑफ ऑल द टीम्स। ओके, नाउ लास्ट नंबर 8, माई ब्रदर कैन स्विम मेनी लैप्स ब्लैंक इनटू ब्रैकेट इजी देन आई कैन। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आप देख रहे हो फिलअप्स के बाद
धेन लगाया है, यानी कंपैरिजन किया है ब्रदर का और माई सेल्फ मीन्स आई कैन। ठीक है, यहाँ 2 पर्सन का कंपैरिजन दिखाया है। तो यहाँ पे ईजी, तो ईजी का एडवर्ब क्या होता है? ईजिली। ठीक है, वाई का आई हो जाता है और एल वाई एड होता है ईजिली। बट हियर ईजिली तो वो पॉजिटिव फॉर्म हुआ, यहाँ पे धेन दिया है इसलिए हमें कंपेरेटिव फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो व्हाट इज कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ ईजिली? मोर ईजिली। सो व्हाट इज आंसर? माई ब्रदर कैन स्विम मैनी लैप्स मोर ईजिली देन आई कैन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से 1 to 8 सेंटेंसेस में पहले सभी एडजेक्टिव्स को हमें एडवर्ब में चेंज करना है और फिर सेंटेंस पढ़ के हमें ये डिसाइड करना है वेदर वी हैव टू राइट पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडवर्ब फॉर्म. So students, whatever I have discussed in this exercise, I hope you all of you understood, and this is very short chapter students, only 3 exercises are there. So whatever I have discussed in this video, you all of you understood it properly. All the students write all the exercise with the help of pencil and read all the exercise properly. Thank you. Have a nice day to all of you. Sentence number 6. The new mechanic checked the car blank into bracket thorough than the old mechanic. So here students, then is written in the sentence, so we have to write comparative form. So what is answer? The new mechanic checked the car more thoroughly than the old mechanic. Okay, so this is the answer. अब हमें स्टूडेंट्स पता चल जाना चाहिए कि जैसे कि सेंटेंस में धैन लिखा है तो हमें यहाँ कंपैरेटिव फॉर्म डालना है, इसलिए यहाँ थरो दिया है बट उसका एडवर्ब थॉरली होता है और उसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है? मोर थॉरली. ओके, नंबर 7. आवर टीम प्लेड द ब्लैंक इनटू ब्रैकेट बैड ऑफ ऑल द टीम्स. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फिलअप्स के आगे ध लिखा है, इसलिए यहाँ पे हमें सुपरलेटिव फॉर्म डालना है. तो व्हाट इज सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ बैड? वर्स्ट. दैट्स व्हाई हियर वर्स्ट इज रिटन WORST. आवर टीम प्लेड द वर्स्ट ऑफ ऑल द टीम्स. नंबर 8. माई ब्रदर कैन स्विम मैनी लैप्स ब्लैंक इंटू ब्रैकेट ईजी देन आई कैन. यहाँ पे भी 2 पर्सन का कंपैरिजन है और सेंटेंस में ध्यान लिखा है, इसलिए सबसे पहले ईजी वर्ड दिया है, यहाँ एडजेक्टिव ईजी है, उसका एडवर्ब क्या होगा? ईजीली. वाई को कट करके हमें ILY ऐड करना पड़ेगा. सो ईजिली इज एडवर्ब, बट यहाँ पे धेन लिखा है इसलिए हमें उसका कंपेरेटिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा. सो व्हाट इज कंपेरेटिव फॉर्म? मोर इजीली. दैट्स व्हाई हियर रिटन मोर इजीली. सो व्हाट इज आंसर? माई ब्रदर कैन स्विम मैनी लैप्स more easily than I can. Okay, so students, these are the 8 sentences in this exercise. So I hope students, whatever I have explained in this exercise, all of you understood it properly. Student, this is a very short chapter and all the exercises are very important. You have to write all the exercise with the help of pencil and read all the exercise properly. Okay students, so here this is the end of this chapter and all of you read it properly. Thank you. Have a nice day to all of you.